السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ حالیہ دہشت گردی میں افغان باشندے ملوث ہیں، پاکستان کے پاس ٹھوس ثبوت بھی موجود ہیں۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے سینیٹ کو بتایا کہ افغانستان کے 3 صوبوں پر فضائی حملے کیے گئے، دہشت گردوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بولے ہماری صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ افغانستان سے دراندازی ختم کی جائے۔ واضح کیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان اب جنازے نہیں اٹھائے گا، ایک ایک شہید کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے بڑے مصدقہ جو ثبوت ہیں وہ افغانستان کے سامنے رکھے۔ وہاں پہ جو ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، تربیت گاہیں ہیں، ان کی بھی لوکیشنز ہم نے انہیں آئیڈینٹیفائی کی کہ یہ ان کی دہشت گردوں کی اور ٹی ٹی پی اور ان کے ساتھ جو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں، اس جگہ کے اوپر ان کی تربیت گاہیں، پناہ گاہیں، کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ افغانستان میں جو 21 فروری کو ان کے 3 صوبوں میں ایئر فورس نے ایئر سٹرائکس کی اور وہاں پہ 100 سے زائد جو دہشت گرد نیٹ ورک کو کنٹرول کرنے والے دہشت گرد تھے، ان کی ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ ہماری صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ایشور کیا جائے کہ دراندازی نہیں ہوگی۔ وہ ایشورنس وہ زبانی تو دیتے تھے لیکن تحریری طور پہ دینے سے انکاری تھے۔ مذاکرات ہوئے دوحہ میں، ایک مطالبہ وہاں پہ افغان طالبان رجیم کی طرف سے آیا کہ اگر آپ ہمیں 10 ارب روپے دے دیں تو ہم ان کی محفوظ پناہ گاہوں اور ان کے ٹھکانوں کو دوسری جگہ، دوسرے بارڈر کی طرف اس کو شفٹ کریں گے۔ یہ فورسز لڑ رہی ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے، ہمارے جوان لڑ رہے ہیں، لیکن جناب چیئرمین ہم صرف جنازے اٹھانے کے لیے نہیں ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے ایک ایک شہید کا، خواہ وہ سویلین ہو، خواہ وہ ہمارا سیکیورٹی فورسز سے ہو، اس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ افغان طالبان اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ پاکستانی کارروائی سے متاثرہ علاقوں تک میڈیا رسائی روک دی گئی۔ ریاستی زیر انتظام افغان میڈیا نے صرف ضلع بہسود کے ملبے کی فوٹیج دکھائی، باقی تباہ شدہ ٹھکانوں کی رپورٹ جاری نہیں کی گئی۔ افغان طالبان اور دہشت گردوں کی ملی بھگت منظر عام پر آنے لگی۔ دی ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق پکتیکا، خوست اور ننگرہار کے رہائشیوں نے بتایا کہ فضائی حملوں کے فوری بعد طالبان فورسز نے کئی علاقوں کو افغان میڈیا کو صرف ضلع بہسود کے ملبے کی فوٹیج دکھانے کی اجازت دی گئی۔ مقامی شہریوں کے مطابق دہشت گرد کئی سال سے اپنے خاندان کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ ماہرین کے مطابق آزاد میڈیا کو رسائی نہ دینا اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ طالبان رجیم زمینی حقائق کو چھپانے میں مصروف ہے۔ میڈیا کوریج پر افغان طالبان کی پابندیوں کی بنا پر ہلاکتوں کی اصل تعداد اور کارروائیوں کے مکمل اثرات پر سوالات اٹھنے لگے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 4 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا، جہاں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا، جبکہ علاقے میں کلیئرنس آپریشن بھی جاری ہے۔ پاک زمین پر ناپاک وجود ناقابل قبول۔ ملک دشمنوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 4 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، جہاں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد متعدد سنگین کارروائیوں میں ملوث تھے، جبکہ علاقے میں ملک دشمن عناصر کے مکمل خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی جاری ہے۔ آپریشن پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، دہشت گردوں کے قلعہ تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بنوں میں شہید لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل گل فراز شہید کی نماز جنازہ مانسیرہ، جبکہ سپاہی کرامت کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کی گئی۔ شہداء کو ان کے آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز اور قومی وقار کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ شہداء کی نماز جنازہ میں سینئر فوجی افسران، علاقہ عمائدین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہم مذاکرات چاہتے ہیں لیکن ایک شخص ضد پر اڑا ہو اور بات ماننے کو تیار ہی نہ ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی اپوزیشن پر کڑی تنقید، بولے سیاست دانوں نے تو میثاق جمہوریت کیا تھا لیکن ان کے لیڈر نے 6-7 سال زور لگا کر کہا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی گئی، بولے جمہوریت مذاکرات سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔
हुकूमत जमहूरी अंदाज में मामलात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हम मुज़ाकरात चाहते हैं, मगर कोई हटदर्मी पर अड़ा हुआ तो क्या कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह सेनेट इजलास में अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, जो लोग संजीदा मुज़ाकरात के ख्वाह हैं उनसे बात नहीं की जा रही, जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते उनको दरख्वास्तें दी जा रही हैं। अपोजिशन पर जोर दिया कि वो मिसाक जमहूरियत की मजबूती के लिए हुकूमत का साथ दे, कमेटीज़ में शिरकत करे, सियासी अमल का फ़ाल हिस्सा बने। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बोले, हम मुल्क की बेहतरी के लिए साथ बैठने को तैयार हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने हमेशा मुफाहमत की कोशिश की है, तो इस वक्त भी कोशिश की जब आप इक़्तिदार में थे। नून लीग की रहनुमा ने कहा कि अपोजिशन केसेस पर एतराज़ उठाती है, मगर हकीकत ये है कि उन्हें भी अदालतों से रिलीफ होता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि डॉक्टर हर शहीद के साथ खड़े हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि अफवाज की शहादतों के मोतरफ हैं। उम्मीद करते हैं कि बानी चेयरमैन को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अगर दोबारा तारीकी में टीका लगवाया गया तो ये अमल काबिल कबूल नहीं होगा। बानी को ज़रूरत है कि उनका मुकम्मल चेकअप हो। इस पर कोई शर्त रखना हुकूमत की संगदिली है। आप ख़ानदान पर शराइत मुसल्लत नहीं कर सकते। हम बार बार यहाँ आते रहेंगे, हम बार बार दरवाज़ा खटखटाएंगे, कानून का दरवाज़ा, अखलाकियात का दरवाज़ा, सियासत का दरवाज़ा। अगले हफ्ते जॉइंट सेशन है, पार्लिमानी साल का इब्तिदा होना है, तो हम हर जगह अपना एहतजाज बुलंद करेंगे। हम हर शहीद के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो शहादतें दी हैं, हम उन शहादतों के मोतरफ हैं। हम उन भाइयों के, उन बच्चों के मोतरफ हैं, वो कौम के शहीद हैं। उनके ख़ानदानों के साथ हम खड़े हैं कि तारीकी में उनको ले जाते हैं, एक टीका लगवाते हैं और वापस ले आते हैं। ना ख़ानदान को मालूम होता है, ना उनके ज़ाती मालिजीन को मालूम होता है, तो किसी तरह ये अमल काबिल एतबार नहीं होता। खान साहब को ज़रूरत है कि मुकम्मल तशख़ीस हो, मुकम्मल उनका चेकअप हो, शिफा इंटरनेशनल में हो। इसके लिए कोई शर्त रखना हुकूमत की तरफ से बिल्कुल एक संगदिली की बात है। सानह गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ, जिसमें समात में मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों के अफसरान ने बयानात रिकॉर्ड करवाए, जबकि MQM पाकिस्तान की फरीक बनने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। बच्चों का आग से खेलना मुमकिन तौर पर आतिशज़दगी की वजह करार दिया जा रहा है। केस की मज़ीद समात बुध तक मुलतवी कर दी गई। गुल प्लाजा कैसे भस्म हुआ, जाने क्यों कर गई, वजूहात क्या थी, जिम्मेदार कौन। सिंध हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन ने सरकारी अफसरान की क्लास ले ली। MQM रहनुमा फारूक सत्तार अपने वकील तारिक मंसूर कमीशन के रूबरू आए। तारिक मंसूर ने कमीशन को अपनी मालूमात फराहम करने की कोशिश की, जिस पर कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने हिदायत की कि मालूमात ईमेल के जरिए फराहम की जाएं। इस दौरान डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपनी बात करने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि इजलास खत्म होने के बाद उनकी बात सुनी जाएगी। SSP आरिफ अजीज ने कमीशन को बताया, वाकई की इत्तला मिलते ही फौरी नफरी भेजी। मालूम नहीं था कि अंदर कितने लोग हैं। आरिफ अजीज ने बताया, इमारत में 2 बच्चे आग से खेल रहे थे। मकाम पर मौजूद सामान भी ऐसा था जिससे आग को फैलने में मदद मिली। दोनों बच्चों के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए। म्यूनिसिपल कमिश्नर सुमेरा हुसैन ने कमीशन के सामने ये एतराफ़ किया कि फायर सेफ्टी के हवाले से इदारों में कमी है, लेकिन उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा में फायर ऑडिट किया गया था और कुछ सिफारिशात पर अमल भी किया गया। सिविल डिफेंस के डायरेक्टर अब्दुल हमीद ने कमीशन को बताया कि उनके इदारे के पास वसाइल की कमी है और स्टाफ की तादाद भी बहुत कम है। कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी और इकदामात पर सवालात उठाए। उन्होंने SSP और दीगर गवाहान को सवालनामे फराहम किए और हिदायत की कि उनके जवाबात मुकम्मल तौर पर जमा कराए जाए। कमीशन ने केस की मजीद समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। सानह गुल प्लाजा पर फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद के तीर चला दिए। सूबाई और शहरी हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल उठाया। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी लगा गए। MQM रहनुमा ने कहा कि सानह गुल प्लाजा कमीशन की इंक्वायरी इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है। सवाल किया कि आखिर जमात इस्लामी खामोश क्यों है। ये गुल प्लाजा सानह को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुज़िश्ता 18 सालों की बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी है, उसमें किस तरह जराइम हुए, बेज़ाब्तगियाँ हुई, किस तरह इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल नहीं, एब्यूज़ हुआ। गुल प्लाजा के सानहे के पस मंज़र में दस्तावेज़ात हमने हासिल किए हैं, वो बहुत शॉकिंग है। 607 सफ़ात पर मुश्तमिल ये पिटीशन है। इसमें
ठोस सबूत और शवाहिद हैं बदعنवानी, करप्शन और यहाँ तक के मुकदमात बने हैं गुल प्लाजा के हवाले से। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें कल मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से मुताल्लिक हतमी फैसला विकेट देकर किया जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान माजी में खेले गए मैच इस तर्ज के मुकाबलों में इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें कल पालीखेले क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान के बाद अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस जारी है। कैंडी का मतला साफ रहने का इम्कान है, जबकि सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान टीम के लिए जीतना ज़रूरी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल, ये जीत पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है? बिल्कुल, T20 में सुपर 8 मरहले में ग्रुप 2 में पाकिस्तान और इंग्लैंड का अहम तरीन मैच जो है वो कल कैंडी के पालीखेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वक्त इंग्लिश क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन जारी है। यहाँ पर इंग्लिश टीम भरपूर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रही है। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से भी आज दोपहर में ट्रेनिंग सेशन किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ट्रेनिंग सेशन था वो 3 घंटे का तवील तरीन ट्रेनिंग सेशन था, जिसमें बल्लेबाजों ने लंबी हिट्स लगाने की यहाँ पर प्रैक्टिस की। इसके साथ साथ फील्डिंग और बॉलिंग की भी भरपूर प्रैक्टिस की गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से। और ग्रुप 2 का ये अहम मैच है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल खेलना है तो कल का ये अहम मैच पाकिस्तान को हर सूरत जीतना होगा। और श्रीलंकन मैट ऑफिस ने कहा है कि कैंडी और पालीखेले का जो मौसम है वो साफ है। कल किसी किस्म की बारिश का और बादलों का इम्कान नहीं है। कैंडी में कल मतला जो है वो साफ रहेगा। जी, नई हुकूमती क़याम के साथ ही बांग्लादेश की अस्करी क़यादत में अहम तब्दीलियाँ। लेफ्टिनेंट जनरल एम मोइनुर रहमान ने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर हो गए हैं। मेजर जनरल कैसर रशीद चौधरी को डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस तैनात कर दिया गया है। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर इंतजामी रद्दोबदल का आगाज हो गया। बांग्लादेशी फौज की आला कमान में बड़ी तब्दीलियां। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मोइनुर रहमान को नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया। मेजर जनरल कैसर रशीद चौधरी डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस तैनात। आर्मी हेडक्वार्टर की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक भारत में तैनात दिफाई मुशीर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हफीजुर रहमान को तरक्की देकर मेजर जनरल बना दिया गया। उन्हें 50 खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।